So they were like, भैया इसका इंजन चेंज करना पड़ेगा. So yeah, like that's how my experience has been with Suzuki. So I just cross-checked with Suzuki also. So this was my 7th service of this bike, and basic service में the cost was only. Yeah, good morning everyone. We are heading towards Super Suzuki to get this bike serviced. It has been more than 5,000 kilometers on this bike since last it was serviced, and I usually don't let it go this far, but we planned a trip and I did not have time to get this bike serviced, and we like had 1,000 kilometer of road trip planned to Lakhimpur. I'm going to start editing that vlog, and I'm not sure if this one will come before that or that will come before this. I don't know. That's like I'll see, because this vlog will not take that much time to edit, so I might just put out this one first. So yeah, usually I'd get it serviced after 3,000 3,500, and also the oil that I put in is Motulka V300, and that is like good enough till I think 8,000 kilometers. There are few rumors that it is a racing spec engine also. It should not be ran through that much. It should be serviced quickly, but even though it's a racing spec, it can go up to like 8,000 kilometers on a regular bike, so this is completely fine. Yeah, anyways, so जब मेरे पास RS थी तो उस बाइक को भी मैं रेगुलरली सर्विस करवा लिया करता था, बिकॉज वो बाइक तो भाई मतलब वैसे ही वाइब्रेशन से भरी हुई थी. लाइक इट यूज टू बी अ वेरी लाइक अनप्लेजेंट राइड ऑन दैट बाइक अगर तुमसे टाइमली सर्विस ना करवाओ. सो वहाँ से मेरी हैबिट पड़ी, एंड स्पेशली जब से मैंने बाइक ख़रीदी है, आई लाइक मेड श्योर दैट आई वांटेड दिस बाइक टू बी केप्ट प्रिटी वेल. आई डिड नॉट वांट एनीथिंग टू बी रॉन्ग विद दिस, बिकॉज बजाज के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब था with service, with quality of parts. Everything was such a up and down with Bajaj. So मेरा यहाँ पे यही था कि first I figured out which service station I want to get my bike serviced from. So पहले मैंने जहाँ से मैं जिस शोरूम से द्वारका वाले से खरीदी थी वहाँ से सर्विस करवाई, बट दे सेड कि दे कैन नॉट पुट मोटोरोला V300. एंड टू बी ऑनेस्ट जो सुजुकी का आता है इंजन ऑयल, इट्स गुड इनफ. आई वुडंट से कि वो ख़राब है एंड आई हैड एन इशू विद द इंजन ऑयल और एनीथिंग, बट जस्ट बिकॉज इट वाज माय प्रेफरेंस दैट आई वांटेड मोटो V300, आई वांटेड दैट. सो देन आई हेड आउट. देन आई रियलाइज़ कि मेरे पास सुपर सुजुकी से कॉल आते थे व्हेन आई वाज लाइक प्लानिंग टू बाय द बाइक, टू गेट द बाइक फ्रॉम देम. Then I realized कि they have super bikes there, right? And they must be using Motul V300. So then I called them up and I was like, do you guys allow putting Motul V300 in smaller bikes? So they said, yeah, that's completely fine. So I decided I'll just go on that. Like I'll go to Super Suzuki for service every time. So since then I've gotten my bike service from Super Suzuki, and now it used to be very close to my house previously from RK-Puram, but now it's almost like 1 hour 30 minutes away from my like current location. But still I'm going there because I just have that, you know, होता है ना थोड़ा टाइम से जब तुम एक ही जगह पे काम करवाते हो, you get to know people and थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. एंड ऑल्सो सुंदर सुंदर बाइकें देखने को मिलती हैं वहाँ पे बहुत. दैट्स ऑल्सो अ प्लस. The only downside of that location is that you don't have a nice place to eat. And when I say nice, I don't mean fancy. When I say nice, I mean smaller place जहाँ पे सिर्फ तुम जाके ऑमलेट, चाय, छोटा मोटा खाना खा सको, एंड अगर बहुत टाइम भी लग रहा है तो यू वुड नॉट माइंड. सो वो चीज़ नहीं है आसपास कहीं पे वहाँ पे. सो इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग यू हैव टू गो ऑर्डर, और कोई महंगे स्पॉट पे जाके खाना खाना पड़ता है आपको. So that's one big issue, but relating to bike, I think I did not face any major issues with the bike. जो भी normal service center में आपको देखने को मिलेगी वो वहाँ पे मिलती है, but other than that there are no specific issues. हाँ बस वहाँ पे ये कि waiting time काफ़ी ज़्यादा होता है because they don't have a lot of people working on the bikes. So that is like you might say that is
वन बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जो मैंने द्वारका वाले से करवाया था वहाँ पे वेटिंग का कोई सीन नहीं था, बिकॉज दे हैव सो मेनी पीपल वर्किंग एट द सेम टाइम। वहाँ पे स्कूटीज़ एंड छोटी बाइक्स जो भी होती हैं सुजुकी की बहुत आती हैं वहाँ पे, स्पेशली स्कूटीज़ बहुत आती हैं वहाँ पे। सो दे हैव लाइक लॉट्स ऑफ पीपल वर्किंग। आई रिमेंबर एक बार मैं शाम को 6 बजे गया था एंड उन्होंने 1-1.5 घंटे में मेरी बाइक सर्विस करके वापस भी दे दी थी। एंड इट वाज नॉट लाइक मैं वहीं पे खड़े होकर देख रहा था, कोई भी ऐसा काम नहीं था कि मतलब बस उन्होंने फटाफट काम निपटाया। एवरीथिंग वाज डन प्रॉपर्ली, ड्राई वॉश भी करके दिया उन्होंने। सो वो फर्स्ट सर्विस ही थी, आई थिंक, हाँ फर्स्ट सर्विस ही मैंने कराई थी। तो इट्स लाइक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ यहाँ पे वेटिंग का है थोड़ा इशू, तो इफ़ यू डोंट माइंड वेटिंग अ बिट, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी जा रहा हूँ। एज यू कैन सी द करेंट टाइम इज़ अराउंड 11:10 एंड मेरा ऑफिस भी है। मैंने ऑफिस में बोला था कि मैं थोड़ा लेट लॉग इन करूँगा एंड आई विल वर्क फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। बट वही है कि अपने एंड से एफर्ट देना पड़ेगा आपको। बट आई जस्ट लाइक द सर्विस देयर, तो इसलिए मैं वहाँ से करवा रहा हूँ। एंड स्पेशली जो सुजुकी के सर्विस स्टेशन है उनका एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू बजाज हैज़ बिन बेटर, एटलीस्ट फॉर मी आई वुड से। क्योंकि आई रिमेंबर बजाज का जो शोरूम है वो बहुत बड़ा था एंड सर्विस स्टेशन भी जो ये ओखला वाला है वो बहुत बड़ा है। बट वहाँ का क्या कहते हैं मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़। आई रिमेंबर मुझे मेरी बैटरी और जो जिस स्टार्टर प्लेट होती है जिससे बैटरी चार्ज होती है उसमें कुछ इशू था। एंड बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द सेंसर इन द बाइक एंड इट वाज डिटेक्टिंग एज अ इंजन फेलियर। सो दे वर लाइक भैया इसका इंजन चेंज करना पड़ेगा। एंड आई वाज टेलिंग देम कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही आ रहा है, वो इशू उसका नहीं है। एक बार बैटरी हम जब चार्ज करते हैं तो इंजन का जो एरर है वो हट जाता है। बट दे वर लाइक नहीं सर, ये तो इंजन का इशू है, इंजन चेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर दिखा रहा है। सो ऐसा लग रहा था इनको खुद पता नहीं है बाइक के बारे में। देन आई हैड टू कॉल अप अ गाय जो वहाँ पे पहले काम करता था। आई यूज्ड टू सर्विस द डोमिनास, KTMs एंड ऑल अदर बिगर बाइक। सो ही देन टोल्ड देम कि ये एरर बैटरी के स्टार्टर प्लेट का है इंस्टेड ऑफ व्हाट डू कॉल इट द इंजन इशू। देन उससे पहले उन्होंने बैटरी भी चेंज करवा के दे दी मुझे, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मतलब बहुत सारा लाइक दे यूज्ड टू नॉट डू थिंग्स थरली एंड बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़े थे। आई रिमेंबर एक शादी में हमें जाना था, बाइक से गए थे एंड देवर लाइक हमने आपकी बाइक का इशू फिक्स कर दिया, आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड शादी में गए हम लोग। आई रिमेंबर वापस आते टाइम दूसरी स्कूटी से किससे धक्का मरवा के हमें लेके आना पड़ा था बाइक को। देन वो बाइक ऐसे ही खड़ी रही बहुत दिनों तक। आई कॉल देम अप कि भाई देयर इज़ नो वे टू टेक दिस बाइक फ्रॉम माई प्लेस टू योर सर्विस स्टेशन, इज़ देयर एनी पिकअप और एनीथिंग अवेलेबल। दे वर लाइक हाँ भिजवा देंगे। आई वेटेड फॉर अ वीक और सो, बाइक ऐसे ही धूल खाती रही पड़े हुए। So they did not do anything. I used to call them up again and again, but there was no follow-up. There was no nothing. I called their क्या कहते हैं सर्विस सेंटर also, जो कस्टमर सपोर्ट वाला होता है. Like I did everything that was in my hand, but there was no support given from Bajaj at that time. So it was really frustrating experience for me. And luckily I have faced issue with Suzuki also, but I would say the amount of issues I have had with this bike are way less than Bajaj. The amount of stress that I get with this bike, touch wood, it's way less than Bajaj. And I really don't know how the condition is of Bajaj service nowadays, but back in the day it was really horrible. And छोटी बाइक हो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ी बाइक होती है आपकी। बड़ी बाइक भी क्या है, 200 cc इज़ नॉट अ बिग बाइक राइट, बट स्टिल मुझे 200 cc के बाइक के साथ इतना इशू फेस करना पड़ा था। They did not have trained mechanics for this bike. There was only 1 or 2 guys who would work. Otherwise they would have to call up the KTM के mechanics को, and they used to service this bike. So ऐसे चलता था because KTM and Bajaj had their partnership at that time. So it used to be like that, and luckily so far on this bike with Suzuki I have not faced that much issues. Obviously there are, I wouldn't say the Suzuki service is like greatest of all, but yeah, there are issues, but way less than what I face. And I've seen like reviews and stuff online saying that Suzuki ka service is very bad, and I feel that might be true for service centers located on the outskirts of what do you call it, on the outskirts of Delhi,
एंड इन रिमोट एरियाज, बट दिल्ली के जो अंदर हैं एटलीस्ट जो मुझे समझ में आ रहा है, देर आर नॉट लाइक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम्स। आई रिमेंबर जो बंदा स्कूटी, कई सारे लोग थे जो इस बाइक पे भी काम करने के लिए रेडी थे, लाइक दे वर लाइक trained well enough to work on this bike because they had this bike का platform already developed and V-Strom was only an addition to the platform. So लाइक कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरी बाइक अगर मैंने ली ये वाली तो आई वुड फेस एन इशू विद सर्विस और समथिंग. So yeah, like that's how my experience has been with Suzuki. And moving forward, अरे वाह, that's such a जुगाड़. I don't know if it got captured on the camera or not, but they just had they had a broken side mirror. So what they did was they put a small pink shaving mirror, or whatever you call it, grooming mirror, in the like case of the side mirror, and they taped it with paper tape. Excellent jugaad. So we are here now. I'll just give my bike for service. Let's see कितना टाइम लगता है, कितना नहीं. टाइम तो यहाँ पे काफ़ी लगता है, but let's see कितना जल्दी होता है. There's another V-Strom standing. Yeah, this is completely gone. What has happened to it? Something has broken. Yeah, that I'll have to replace that. It will be a tedious task. But anyways, the service of this bike is done. They did not have the Motul V300 and I really don't mind क्या कहते हैं जो Suzuki का default 4010 Exter करके, आई थिंक एक्सटर इंजन ऑयल है. सो आई सेड ओके ठीक है, लेट्स जस्ट गो विद दैट. इतना कोई खास लाइक वैसे भी सुजुकी का पहले भी मैंने डलवाया हुआ है. इट्स नाइस ओनली. अगर मैं नेक्स्ट, अब बस ये हुआ कि आई वुड नॉट फील एज कंफर्टेबल एज आई वुड फील ऑन V300 with riding this bike for more than like 3,500 or 4,000 kilometers. I think मैं उसके बाद करवा ही लूँगा. The upside of it was the bill was very low. So I just cross-checked with Suzuki also. So this was my 7th service of this bike. एंड इसमें कुछ मेजर चेंज हुआ नहीं. बेसिकली चेन ल्यूब, चेन क्लीन, क्या कहते हैं, थोड़े बहुत जो स्विचेस एंड बटन्स होते हैं उसमें लुब्रिकेंट डाला सो दैट दे वर्क वेल. एंड ड्राई क्लीन किया. आई डोंट रियली लाइक ड्राई क्लीन. मुझे इससे अच्छा लगता है कि पानी से साफ़ करो, ज़्यादा बेटर है. बट दे डोंट हैव द फैसिलिटी टू क्लीन विद वाटर. दे यूज्ड टू डू इट बट इट्स क्लोज नाउ. सो एनीहाउ, yeah, so this was my 7th service, and basic service में the cost was only 2,430 INR. I'll share the screenshot of it also, and I was like pretty cheap. I mean, ब्रेक पैड्स चेंज करवाने के लिए मैंने बोला तो दे सेट कि अभी आराम से आपके 3-3.5 किलो मतलब 3,000 किलोमीटर के आसपास चल जाएंगे. तो अगर बीच में करवाना तो बीच में भी करवा सकते हो सेफ्टी के लिए, बट वैसे आराम से चल जाने चाहिए अभी. तो मे बी आई लाइक नेक्स्ट सर्विस में ही करवाऊँगा ब्रेक पैड चेंज. उसके अगर मैं करवाता तो आई थिंक 1,000 रुपये के आसपास और बढ़ जाता वो, क्योंकि मैंने प्राइस पूछा था तो दे सेट कि इट कॉस्ट अराउंड 4,000 बोलो 500 समथिंग पर ब्रेक पैड पर एज इन की ईच पेयर. तो आगे का 500, पीछे का 500. एंड या सो आई थिंक अगर मैं ब्रेक पैड चेंज भी करवाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 आ जाता बिल, उससे ज़्यादा नहीं होता. एंड दैट्स स्टिल वेरी चीप फॉर वट एवर वी आर डूइंग. एंड मोटल वाले में होता है कि आई थिंक 500-600 रुपये बढ़ जाते हैं बस अगर मैं मोटल का इंजन ऑयल डलवाता तो. बट या एनीवेज लाइक बाइक फील स्मूथ. जो चीज़ मैंने नोटिस किया कि मोटल वाला इंजन ऑयल फील्स एक्चुअली लाइक व्हेन यू लाइक स्टार्ट द इंजन एंड स्टार्ट रनिंग द बाइक,
यू विल फील दैट डिफरेंस। एक इस वाले इंजन ऑयल और मोटर वाले में देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस दैट आई एम फीलिंग। जो पहले मैं जब भी सर्विस करवा के निकलता था तो आई यूज़ टू फील दैट लाइक होता ना एकदम स्मूथनेस इन द इंजन। सो नेक्स्ट टाइम यही इन्होंने बोला है कि अगर आपको डलवाना है तो पहले हमें इन्फॉर्म कर दो तो हम अरेंज करवा के रखेंगे, अदरवाइज़ ऐसे अवेलेबल नहीं है अब हमारे पास। पहले होता था बट आई थिंक देयर सम पॉलिसी चेंज और समथिंग, दे हैव स्टॉप्ड कीपिंग इट randomly, and they have renovated the showroom also, like workshop also. So it's like I could not record video because भाई मेरे को थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में शर्म शुर्म आती है, so I did not record video. I saw GSX 800 I think जो भी है, looks very nice like in person, like very fresh design I would say, so that was nice. I saw like बगल में डुकाटी भी है, तो I saw like डुकाटी का मल्टीस्ट्राडा खड़ी थी, DIL खड़ी थी, स्क्रैम, आई थिंक स्क्रैम का some modified version of it was also there. So काफ़ी सारी बाइक्स देखने को मिली, एंड या ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आई वुड से। ऐसा लग रहा था वर्क फ्रॉम कैफ़े कर रहा हूँ मैं, बिकॉज कॉफ़ी वॉफ़ी पी, बढ़िया गाने चल रहे थे, मस्त एसी में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए काम करो, एंड साथ साथ में बाइक भी सर्विस हो जा रही है। सो काफ़ी अच्छा है ये वाला। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गेट योर बाइक सर्विस फ्रॉम हियर, लाइक। और काफ़ी चिल माहौल रहता है, ज़्यादा आपको बाइक देने के बाद टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं आप। बट अगर कुछ मेजर इशू आपको लगता है तो यू विल हैव टू बी विजिलेंट। मेजर इशू आई मीन आपको लगता है कि बाइक में कुछ दिक्कत आ रही है, सो बी वेरी परसुएसिव अबाउट इट, एंड ऑब्वियसली वो उनकी बाइक नहीं है तो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट इट लाइक दैट। सो वो चीज़ रहेगी हमेशा, और वो किसी भी सर्विस स्टेशन में आपको मिलेगी, सो इस सिर्फ यहाँ पे नहीं। तो या रेस्ट वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अभी आई विल हेड होम, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग। I planned कि I'll order something, but luckily थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो गया, 2 बज गए हैं। सुबह मैं पहुंचा था 11:30, तो 3 घंटे में हो गया, विच इज़ गुड ओनली। बट पहले तो 4-5 घंटे वेट किया मैंने यहाँ पे, तो इन कंपेरिजन टू दैट इट्स लाइक वेरी क्विक। फक। ये पीछे का नहीं बनता, हाँ फ्रंट का ही होता है, वो 360 वाला होता है। हाँ यहाँ पे लगाते हैं, इधर जैसे ये यहाँ पे लगाते हैं, वो पूरा दिखता है फिर वो। हाँ वो दूसरा होता है। हाँ ऐसे ही टाइम पास, हाँ ऐसे रखा हुआ है। जब घूमने कहीं जाते हैं, घूमने तो फिर उसका बनाते हैं। हाँ उसके लिए So I'm taking a U-turn. I could have taken another one because I have to get biryani. So there is a very nice biryani place in Sector 1, or you can say Sector 5 का बस स्टैंड आरकेपुरम वाला। So मैं वहाँ से बिरयानी पैक करवाता हुआ जाऊँगा। वैसे तो I can also eat there, बट हाथ धोने का नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मेरे हाथ पूरा गंदे हो रखे हैं। So it's better I get it packed, I guess. भैया हाफ बिरयानी पैक कर देना। $150। 3
3 कबाब भी हो जाएंगे फ्राई? 3 कबाब भी कर देना। कितना हो जाएगा टोटल फिर? 4 खा लो 250 हो जाएगा। 4 3 में कितना हुआ? 80 रुपये का हो रहा है, 4 100 रुपये का हो रहा है। और 50 में कितने होंगे? 50 में कितने? 2 पीस। हाँ तो 50 का कर दो आप, 200 कर दे दो। आप कर दी भैया। Got myself kebab and Muradabadi biryani. Now I really just want to race back to home. I can just go to my parents' place also, but दिक्कत ये कि I think सावन start हो चुका है and they don't really eat or let anyone eat non-veg in Sawan, so I don't want to be a hassle there. So इसलिए I'll just rush back to Chhatarpur only. Why is there such a big line here? Don't know. There is waiting. ये तो खाली रहता था पेट्रोल पंप यार. भैया कार्ड से हो जाएगी पेमेंट? इसमें एथेनॉल कितना आ रहा है? 20? एथेनॉल तो बराबर है। बराबर ही है। वो आपके यहाँ पे वाला है 100 वाला? नहीं है ही नहीं। वो किसी पे भी नहीं है कि यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है, और जगह है। अच्छा अच्छा। So this is it for me for this video. I hope you guys liked the video. If you did, please do subscribe, and if you did not, do let me know why. I mean, not because I'll come back at you, but yeah, do let me know why not, because I would love some insights and how can I improve. So do share your thoughts also. I'll see you guys in the next one. Bye bye, take care.